almost afternoon, so I don't know whether to call good morning or good afternoon. A very, very warm welcome to you all, the distinguished dais. And since we are running short, I will not repeat everybody's name. Please excuse me for taking this liberty. On the behalf of Vidya Bhavan Society and Vidya Bhavan Rural Institute, I welcome you all to this national seminar cum workshop on indigenous traditional knowledge and sustainable utilization of traditional food and medicinal plants, propagation, protection and conservation. So we are all aware that indigenous traditional knowledge is a dynamic system of community-based knowledge, skills and practices developed, preserved and primarily transmitted orally through stories, songs, dances, rituals and proverbs over generations, and it is vital for the cultural identity, heritage, livelihoods and sustainability of indigenous people. In the first technical session, we have already learned a lot about the indigenous knowledge, the indigenous tribes, and how sequential erosion of this knowledge poses a significant risk to preserving this knowledge. Hence, there is a growing need to recognize, protect, and respect the indigenous knowledge system. Since we are a higher education institution, it is very pertinent to mention over here that recently our new education policy, it mandates that Indian Traditional Knowledge, ITK, also referred to as IKS or Indian Knowledge System, be scientifically incorporated into school and higher education curricula across all disciplines. The Ministry of Education has created the IKS division and multiple research centers to promote interdisciplinary research on IKS, preserve and disseminate knowledge, and to find societal applications. Guidelines have been issued for higher education institutions to allow students to earn credits by taking IKS courses. So I take this opportunity to congratulate Dr. Anita Jain and her team for taking the initiative to hold a national seminar cum workshop on such a relevant issue. I extend my thanks to all our guests, dignitaries for joining us today. We are also grateful to our sponsors, organizers and everyone who has contributed to making this event possible. Thank you all who have made the effort to be here today. Your presence is valuable. We have a day full of insightful lectures and discussions, and I'm confident that this will be a productive and inspiring event and will prove to be a stepping stone for many more of such events in the future. Thank you, and once again, welcome to BBRI. Thank you, ma'am. I now invite Dr. Anita Jain, ma'am, Organizing Secretary, to share the theme of today's seminar cum workshop. Welcome, ma'am. Respected dignitaries, esteemed colleagues, partners from the Center for Microfinance and the Foundation of Ecological Security, distinguished scholars, practitioners, students, and honored guests. A very good afternoon to all of you. It is both an honor and privilege to host this important national seminar cum workshop here at BBRI campus Udaipur. Today, we gather not only to exchange knowledge, but also to reaffirm our collective responsibility towards preserving, protecting, and sustainably utilizing the priceless heritage of indigenous and traditional knowledge with a special focus on food and medicinal plants. At the very outset, I wish to pay my humble tribute to late Honorable Dr. S.K. Jain, father of ethnobotany in India. His pioneering work gave legitimacy to the study of indigenous traditions and highlighted the wisdom embedded in the lives of local communities. For me, personally, he was not only an academic giant, but also a mentor whose vision continued to inspire my journey. Today's event is in many ways the extension of his legacy. Now, I'd like to briefly introduce our institution, Vidya Bhavan Rural Institute, a constituent of Vidya Bhavan Society, founded by Dr. Shri Mohan Sinha Mehta with the support of Dr. K. L. Shrimali.
and Shri K.L. Bodhia was built on the vision of creating democratic society through education. Today, VVRI is one of the Udaipur's leading postgraduate college in humanities, social sciences, commerce and science. Since its inception, it has sought to nurture leaders rooted in the rural values and equipped with broad social vision. The Department of Botany, established in 1968 and accredited for PhD program in 2012 under Mohanlal Sukhadia University, has earned distinction for its work in environment, biodiversity, ethnobiology and ecology. Friends, our theme, propagation, protection and conservation are highly timely. Across the world, the demand for traditional food and medicinal plant is rising dramatically. From Himalayan region, researchers have recently developed new value-added product and filed patent based on indigenous plant like Bombyx and Tinospora cordifolia. From the flower of Bombyx, locally हमारे यहाँ सेमल जाना जाता है, they prepare jam, and from Tinospora cordifolia they prepare antibacterial drug from the bark and validating what community have practiced from centuries. At CSIR and CMAC, a new high-yielding variety of Eureka pectata, a critically endangered Ayurvedic herb, has been developed, offering both conservation and sustainable use. So even cutting-edge technology like AI-based authentication tools are now being applied to detect alteration in medicinal plant, protecting both consumer and the integrity of traditional knowledge system. At the same time, global institutions are sounding a note of caution. According to IUCN, nearly 21% of medicinal and aromatic plant species are threatened with extinction. A sobering reminder that clock is ticking. The IUCN White Check report has already identified high-risk species in trade, while the IUCN guideline on indigenous knowledge emphasize that rights of the local community must be safeguarded, their wisdom respected, and benefits fairly shared. Similarly, sustainable goals, especially SDG 3, good health and well-being, SDG 15, life on land, SDG 2, zero hunger, highlighted the global urgency for conserving biodiversity while empowering community. Recently, I think in last week, BSI released Red Data List of Indian medicinal plants and also released the national policy for the conservation of these flora from 25 to 2030. So all these things are aligned with our today's seminar. Why is this so important now? Because climate change, habitat loss and modernization are accelerating the erosion of both biodiversity and knowledge that sustain it. Once a medicinal plant disappeared or the oral tradition that described its use fell away, we lost not only a cure for a food source but also a link to culture, identity and resilience. At a time when the lifestyle diseases, antimicrobial resistance, food security are growing challenges, traditional food and medicine system are not luxury from the past. They are vital source for the future. And let us remember, conservation is not limited to forest alone. By promoting the plantation of native species both in urban and rural setting, we can restore our degraded forest, enhance local biodiversity and create green space that serve both ecological and cultural needs. This national seminar cum workshop has been thoughtfully structured around the four sub-themes, such addressing a vital dimensions of our mission. Session 1, Bridging Traditional Knowledge and Modern Sciences,
will examine the role of indigenous medicinal practices in contemporary healthcare, highlighting how traditional knowledge complements modern scientific research and why preserving and validating these systems is essential. This session is taken in the morning by the Arvind Saklani sir as well as Kateva sir. And session 2, knowledge and capacity building, will focus on the diversity of medicinal plants, especially in Rajasthan, the role of forest as reservoir of raw material for traditional healers and industries, and importance of tools like the People's Biodiversity Register to safeguard community knowledge. Session 3, strategy and collaborative approach for conservation, will bring together NGOs, scholars, researchers to discuss capacity building, sustainable field collection and post-harvesting management, and the development of guideline and network for ethical harvesting. Session 4, wild bioresources and food security of tribal and forest community, will highlight the critical role of wild food in sustaining livelihood, their harvesting, processing and regeneration potentials, ensuring that food security and biodiversity conservation remain inseparable. This national seminar cum workshop is therefore more than an academic exercise. It is called to action to propagate native plant responsibly, to protect the custodian of knowledge, and to conserve our biodiversity with urgency and integrity. Our task is to ensure that this wisdom does not vanish into history book, but lives on renewed, respected, and relevant for generations to come. And to address these issues, we are fortunate to have great experts and thought leaders with us today. I am confident that their insights and your active participation will not only enrich this dialogue, but also enhance your vision and expertise on the subject. With these thoughts, I extend my warm wishes for the success of this workshop. May the discussion, collaborations, innovations that emerge has here inspired lasting partnership and concrete steps for the propagation, protection and conservation of our traditional food and medicinal plants. Again, I heartily welcome all of you and thank you. Thank you, ma'am. I'm sure this seminar will serve as a platform for exchanging ideas, sharing research and building strategies to integrate ancient wisdom with the modern science. Good afternoon, everybody. I am really very happy to be here today in this very important event on ethnobotany. And I am grateful to Vidya Bhavan Rural Institute for inviting me to say something about ethnobotany. Dr. Kanika Sharma ji, Director of the Institute, Shri Rajendra Bhatt ji, CEO Sahab, Shri Jitendra Sharma ji, President, Professor S.S. Kateva Sahab, Dr. Satish Kumar Sharma ji, Dr. G.P. Jhala ji, Dr. Bhartiga Jain, and overall the main and key figure of this program, Dr. Anita Jain, the participants sitting here, faculty members, research scholars, and the persons who came, I feel they came from tribal area. So I am grateful to all of you. मैं अपनी बात हिंदी में ही कहूँगा क्योंकि यहाँ पर करीब 40% लोग ग्रामीण या आदिवासी इलाकों से आए हुए हैं, ये बहनें आई हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सबको समझ में आए। और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि आपने, ऑर्गेनाइजर्स ने
इतना अच्छा प्रयास किया कि जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके ज्ञान की हम बात करते हैं, आपने उनको बुलाया है। मैं अपने इन आदिवासी समुदाय की बहनों को प्रणाम करता हूं। माय टॉपिक इज इथनोबॉटनी, इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। इथनोबॉटनी क्या है और आज की वर्तमान की स्थिति क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, हम कहां तक उसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि पुराने जमाने में कोई अलग से इथनोबॉटनी की क्लासेज या इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे। गुरुकुलों में, आश्रमों में विद्यार्थी अध्ययन करते थे और वहीं जंगल में प्रकृति के बीच में बैठकर गुरु शिष्य को पढ़ाते थे। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि गुरु जी बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और नीचे शिष्य कुछ पौधे अपने लिए हुए हैं और वो गुरुदेव से अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। ये सही इथनोबॉटनी थी और जब तक हम नेचर में नहीं उतरेंगे तब तक हम इथनोबॉटनी नहीं सीख सकते। नेक्स्ट प्लीज। अब इथनोबॉटनी क्या है, मैं यहाँ डिफाइन उतना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अधिकांश लोग, विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं मैं, जो पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि इथनोबॉटनी केवल औषधीय पौधे या मेडिसिनल प्लांट की ही फील्ड है, बाकी और कुछ नहीं है। हाउएवर, इथनोबॉटनी इज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स विद ह्यूमन बीइंग। हमारा सीधा संबंध क्या है पौधों से और इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप में संबंध क्या है, ये दोनों एस्पेक्ट इथनोबॉटनी में आते हैं। हम किसी प्लांट को औषधीय रूप में उपयोग करते हैं, किसी प्लांट को मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, मकान बनाने में पौधों को उपयोग करते हैं, लकड़ी को उपयोग में करते हैं। ठीक है ना, ये हमारा सीधा संबंध है। लेकिन हमारा देश ऐसा देश है कि परोक्ष संबंध भी स्थापित किया है इन पौधों से। क्या हम बहुत से प्लांट्स में आस्था रखते हैं, आस्था दिखती तो नहीं है, परोक्ष संबंध है। बहुत से पौधों की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या बात है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं, वही परोक्ष संबंध है। हम बहुत से पौधों को काटते नहीं है, इतनी आस्था है, वह भी हमारा परोक्ष संबंध है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है ये, प्रत्यक्ष एंड परोक्ष दोनों, उसको हम इथनोबॉटनी कहते हैं। और आज के समय इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई है, जैसा कि आपको सुबह प्रोफेसर खटेवा साहब ने बताया, आदरणीय शर्मा जी ने भी इतनी अच्छी बातें बताई, ये सब। तो ये विशेष रूप से जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहां पर तो इस विषय में बहुत कुछ विकास किया है इन आदिवासी समुदायों का, और न केवल इन समुदायों का बल्कि समूचे देश का विकास किया। नेक्स्ट प्लीज। अब हमारे पास में बहुत सी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जो जंगलों में होते हैं, कुदरती पैदा होते हैं, और कुछ हम प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं। तो इनको हमारे विश्व की बहुत बड़ी आबादी इनको उपयोग में लाती है। अब इसके बावजूद भी, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक छुई नहीं गई हैं, जिनको टच ही नहीं किया गया है। इतना स्कोप इसका है। इसीलिए जो मैंने नीचे लिखा है, अप्लाइड इथनोबॉटनी इज अर्जेंटली नीडेड इन डेवलपिंग कंट्री। हमारे देश में जहां केवल फूल देने वाले पौधों की 22,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, केवल फूल देने वाले, मैं लोअर प्लांट्स की बात नहीं करता हूं। आप सोचिए, उनमें से कुछ ही हजारों का अध्ययन हुआ है, बाकी तो अभी अनछुए हैं। तो जिस देश में इतनी विविधता हो और हम लोग कह रहे गरीब देश है, गरीब कहां से हो गया, हम बहुत अमीर हैं, लेकिन हमको उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये बात आती है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। दो तरह की विविधता है, एक बायोलॉजिकल है और एक कल्चरल है। हम देखते हैं प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, जीनस हैं, वैरायटीज हैं, फैमिलीज हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं, ये सब वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ
hundreds and millions of years, हजारों लाखों साल में ये प्रजातियों का, इन वैरायटीज का विकास हुआ, तब जाकर हम आज इनको अपने सामने देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे ही उसने पौधों का उपयोग शुरू किया, उनसे अपना संबंध स्थापित किया और अपने कल्चर में ले आया। हम आंवले की पूजा क्यों करते हैं, बड़ की पूजा क्यों करते हैं, पीपल की पूजा क्यों करते हैं, कई सारे त्योहार क्यों मनाते हैं, शादी में कुछ पौधों को क्यों उपयोग में लाते हैं। जब अंतिम समय होता है, मृत्यु हो जाती है, तब कुछ प्रकार के विशेष दूध को, इसको उसको क्यों उपयोग में लाते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो आपस में इनका घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट प्लीज। 35 मिनट का टाइम है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात जल्दी खत्म करूं। इस स्लाइड में बहुत सारी कुछ स्पीशीज बताई हैं। इनमें, इन प्रजातियों में, इन पौधों में कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन्हें की स्पीशीज कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती है ना, एक पॉइंट को अगर आपने बिगाड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो पूरे के पूरे जितने होते हैं सिस्टम में सब ध्वस्त हो जाते हैं। तो these key species are indispensable to the very existence of human being. हमको इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि वो की स्पीशीज कौन सी है। नेक्स्ट प्लीज। अब कई पूरे विश्व में कई तरह के सिस्टम डेवलप हुए, ये जो इसके उपचार करने के, लेकिन ये सभी सिस्टम का ओरिजिन कहां से हुआ, उत्पत्ति कहां से हुई। जो सेंटर में लगा है फॉर्मल मेडिसिन सिस्टम, और इसमें से जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, मंगोलिया में बुद्धिस्ट सिस्टम, जापान में जो क्योंफू सिस्टम है, साउथ चाइना में दाई सिस्टम है, होम्योपैथी जर्मनी से आई, यूगर सिस्टम नॉर्थ वेस्ट चाइना से आया, और वेस्टर्न एलोपैथी इससे आई, यूरोप से, अमेरिका से। आयुर्वेद हमारे देश की देन है, और यूनानी सिस्टम इस्लामिक कंट्रीज से आए, और सिद्धा सिस्टम तमिल से आए। तो ये सब सिस्टम आज प्रचलित हैं, लेकिन इन सब सिस्टम्स की मदद क्या है? फोक मेडिसिन। फोक मेडिसिन। नेक्स्ट प्लीज। अब जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो आयुर्वेद का इतिहास लगभग 900 से 800 बीसी का है, क्राइस्ट के इसके पहले सिद्धा सिस्टम का, यूनानी होम्योपैथी का। लेकिन हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो एथनोबॉटनी की बात कर रहे हैं, फोक मेडिसिन सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से सिविलाइजेशन, सभ्यता विकसित होती गई, तब से ही मनुष्य के संपर्क में, मनुष्य पौधों के संपर्क में आया और उसने उपयोग में लाना शुरू किया। इसलिए कहा पता नहीं, अनिश्चित काल, बहुत प्राचीन काल से ये फोक मेडिसिन आई। नेक्स्ट प्लीज। ये बताया गया है कि इसमें हमारे देश में अलग अलग ग्रुप्स के कितने हजार प्रजातियां होती हैं। ये डेटा पुराना है, प्रोफेसर राव साहब का 94 का। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड। आज जो 2024 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी, उससे पता चला कि 15,000 स्पीशीज पहली वाली स्लाइड में थे। उन्होंने बताया कि केवल फूल देने वाले पौधों की 22,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिम्नोस्पर्म की 1300 प्रजातियां। इसी प्रकार जो अन्य वर्ग हैं पौधों के, उन अन्य वर्गों की इतनी प्रजातियां हैं हमारे देश में। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो IUCN रेड लिस्ट स्पीशीज है, जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो संकट के कगार पर हैं, जो संकटापन्न स्थिति में हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जहां पर जैसा कि शर्मा साहब ने बताया था, एंडेंजर्ड कैटेगरी, क्रिटिकली, ये सब वल्नरेबल बताया था। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी हैं, आज हमारे देश में इनमें कितनी संख्या है इन प्रजातियों की, ये स्लाइड में बताया गया है। 2 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। 2 प्रजातियों की खोज ऐसी हुई कि वो किताब, वो इतिहास बन गई। हम केवल किताबों में ही पढ़ सकते हैं और बाकी हमको नहीं पता, चिंता ही नहीं। कुछ 2 एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। 2 प्रजातियां ऐसी हैं कि जो पहले अपने आप नेचुरल होती थी, कुदरत होती थी, लेकिन अब वो वाइल्ड में से चली गई। लेकिन जहां प्लांटेशन किया वहां पर बची हुई हैं। और भी इस प्रकार की अलग अलग जो प्रजातियां हैं, उनका नंबर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये इसमें फोटो नहीं आ पा रही है किसी कारण से। हमारे देश में करीब करीब
53 मिलियन ट्राइबल पॉपुलेशन है। 53, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 53 मिलियन, और ये 227 एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, और इनकी 550 कम्युनिटीज हैं, और हमारे देश में लगभग 5000 गांवों में ये आदिवासी वर्ग के लोग निवास करते हैं। करीब 106 तरह के इनके लैंग्वेज है। फिर इनके डायलेक्ट, लैंग्वेज के अलावा फिर डायलेक्ट अलग हैं। जैसे हिंदी में राजस्थानी डायलेक्ट अलग है, तो बिहारी हिंदी का डायलेक्ट अलग है, हरियाणवी हिंदी का डायलेक्ट अलग है। इस प्रकार इनके इतने डायलेक्ट हैं। इस प्रकार, एंड दे बिलोंग टू 3 मेन ग्रुप्स, नेग्रोइड, यूरोपोई एंड मंगोलाई। नेक्स्ट प्लीज। अलग अलग रेस हैं। अब जो अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों में ये आदिवासी रहते हैं। आपको शायद वहां से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सेंट्रल रीजन है। सेंट्रल रीजन में आदिवासी रहते हैं, गोंड, ओरांव, भील वगैरह। फिर सेंट्रल में भी साउथ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल। फिर जो पश्चिमी भाग है हमारे देश का, जिसमें राजस्थान, गुजरात ये सब आते हैं, उसमें भी भील, डोडिया, ये सब आदिवासी रहते हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके आदिवासियों के नाम हैं नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ रीजन, आइलैंड रीजन, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट प्लीज। ये बड़ी अच्छी रिसर्च हुई थी। 1994 में इसकी रिपोर्ट आई थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन एथनोबायोलॉजी। जब ये देखा गया कि इतना ज्ञान इन आदिवासियों के पास में है और विलुप्त भी होता जा रहा है, हमको डॉक्यूमेंट करना होगा। और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन एथनोबायोलॉजी स्टार्ट किया। इसके करीब 27 सेंटर थे पूरी कंट्री में, और वहां के लोगों को काम दिया, प्रोफेसर को, वैज्ञानिकों को, कि आप अपने क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में जाकर पता लगाइए, डॉक्यूमेंट कीजिए कि कौन से पौधे किस में यूज करते हैं। आप सोच सकते हैं, केवल औषधीय पौधों की प्रजातियां 7,500। अब ये नंबर और बढ़ गया है, 94 की रिपोर्ट बता रहा हूं। 7,500 केवल औषधीय पौधे। खाने में कितनी तरह के पौधे उपयोग में लाते हैं हमारे आदिवासी भाई? करीब करीब 4,000 के लगभग। इतने नॉलेज। कोई हमसे पूछे कि आप खाने वाले पौधों के नाम बता दीजिए, आप 20-25 तरह के फल बता देंगे, 20-25 तरह की सब्जी बता देंगे, वो भी जाता, 20-25 तरह के खाने के अनाज बता देंगे, और जो जमी कंद है और ये वेजिटेबल्स है, ये भी 100-150 से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा, वरना हमको ज्ञान है उनका। इनके पास में लगभग 4,000 प्रकार के पौधों का ज्ञान है। इसी तरह से मटीरियल कल्चर, जो कई सारे प्रकार के सामान बनाते हैं, वो जो फाइबर बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, उसमें करीब करीब 550 प्रकार की स्पीशीज का ज्ञान इनके पास में है। अपने जानवरों को खिलाते हैं, वो 400 प्रजातियों के पौधों का ज्ञान इनको है। ये पूरे देश की बात बता रहा हूँ। 5,000 गांवों में जो आदिवासी भाई रहते हैं, उनके ज्ञान की। ये पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, पौधों से बनाते हैं अपने, और गम, रेजिन, डाई और परफ्यूम्स, ये भी खुशबूदार पौधों के बारे में जानते हैं। और उसके बारे में करीब 100 पौधों की जानकारी इन लोगों के पास में है। इतना विशाल ज्ञान का भंडार इन लोगों के पास में है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं बता चुका हूं कि ये सिस्टम्स हैं, इनमें इतने % यूज होती है प्लांट स्पीशीज, और सबसे ज्यादा उपयोग में आती है फोक मेडिसिन, जो हम ट्राइबल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हो गया। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आज हम देखते हैं और बात भी हुई, क्या they have always found themselves marginalized। इतना सब कुछ उनके पास होते हुए भी एक तरफ एक अलग थलग वो अपने आप को आज महसूस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और बहुत सारी जो जमीन थी, जो उनके बहुत रिच थी, आज वो बैरन लैंड में, ऊसर भूमि में वो कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट प्लीज। और पूरे हमारे देश में जहां जहां भी आदिवासी लोग निवास करते हैं, वो पूरी की पूरी जमीन, पूरा क्षेत्र मिनरल से, कॉपर, जिंक, माइका, क्रोमियम, आप तो राजस्थान में आपके आस उदयपुर के आसपास ही देखते हैं कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कितनी ज्यादा माइनिंग हो रही है जिंक की, कॉपर की, इन सब की। इसी तरह से आप झारखंड के इलाके में जाइए,
साउथ मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, हर जगह माइंस, गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस, ये वो। और ये लोग उस जमीन के मालिक ये वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं और बहुत ही अभावों में अपना जीवन काट रहे हैं। मतलब एक मालिक अपने ही घर में एक मजदूर बना हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ उदाहरण दिए थे, ये तो खैर बताया ही था शर्मा साहब ने, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। बिश्नोई समाज का उदाहरण बहुत अच्छा दिया था कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया इतने लोगों ने, और आज भी उन्होंने बताया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हृदय भराया कि वो एक हिरण को, बच्चे को अपना माँ की तरह वो अपना फीडिंग करा रही है। तो ये इस तरह ये होता है कंजर्वेशन, ये होता है लगाव। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमारे यहाँ जैसा कि डॉक्टर संगलानी साहब ने सुबह अपने व्याख्यान में बताया था कि गढ़वाल हिमालय में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उस आंदोलन को शुरू किया। इसी प्रकार कर्नाटक में भी 1980 में एक एपिको आंदोलन चला, ठीक है ना। तो कई आंदोलन इस प्रकार के चलते रहे। नेक्स्ट प्लीज। ये फोटो नहीं आ रही, आई डोंट नो हाउ। कुछ ऐसे केस हैं विदेशों के भी कि जहां बंजर जमीनों को लोग इस प्रकार उपजाऊ बना रहे हैं। नेक्स्ट। ये जावा में, वेस्ट जावा, पश्चिमी जावा है, वहां पर एक सिस्टम काम करता है जिसको वो कहते हैं केबुन पैलुम, और दूसरा सिस्टम है पैका रेंगन। इस प्रकार के सिस्टम से वो अपनी जमीन, जो ऊसर जमीन है, उसको वो उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। केबुन पैलुम में वो क्या करते हैं कि जमीन का कुछ नहीं है, तो शुरू में वो वहां पर थोड़ा उसको पानी मानी से गीला करते हैं, बहुत बड़े एरिया को, और उसमें जो एनुअल्स होते हैं, घास होते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, उसको डाल देते हैं। 2-3 साल तक वो प्लांट्स बढ़ते रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, इसके बाद में इसको केबन कहते हैं। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज केबन स्टेज। देन इसके बाद में वो क्या करते हैं कि पेरेनियल्स डाल देते हैं, जो बहुवर्षीय होते हैं, झाड़ी, ये वो सब डाल देते हैं। वो इस प्रकार कुछ साल तक चलता है। एंड फाइनली वो ट्री का प्लांटेशन करते हैं, ट्री के सीड्स डालते हैं, तो वो पूरा का पूरा इलाका जो है एक अच्छे फॉरेस्ट में डेवलप हो जाता है। बेस्ट जावा में। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह से ये जो पेकर एंड गन है, उसमें क्या करते हैं, जैसे इन्होंने ये केबल सिस्टम में बना दिया, तो उसमें ये जंगल के बीच में हट बनाते हैं, और जब हट बना देते हैं और उसके आसपास और स्पीशीज लगाते हैं, तो उसको पेकर एंड गन कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर दूसरी कंट्रीज से जो मैंने डेटा कलेक्ट किए कि जो क्यूना इंडियंस होते हैं पनामा में, वो जंगल से बाहर जाते हैं, मेनलैंड में जाते हैं, और वहां पर वो प्लांटेशन करते हैं। इसी तरह से चाइना में जो जिन्हू ट्राइब होते हैं, वो टी गार्डन को डेवलप करते हैं, और उसके आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी लगाते हैं। कुइबुयो में, युगांडा में, वहां तो नेशनल पार्क में ट्राइबल्स को रहने की परमिशन दी जाती है, और वो वहां पर कंजर्वेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह हमारे देश में जो संथाल ट्राइब है, झारखंड में मोस्टली है, उड़ीसा में संथाल ट्राइब, जो एम्बली का मायो बेलान है, आंवला और इससे जो संबंधित जो ग्रुप के हैं, उनको कटिंग नहीं करते कभी, न पेड़ काटते और न उनकी शाखाओं को काटते। ओनली पीलिंग ऑफ बार्क अलाउड, दैट डू बाय रोटेशन। पेड़ नहीं काटा जाएगा, जब उसकी छाल बन जाएगी तो उसकी पीलिंग कर लेते हैं, और कुछ नहीं करते वो, और वो भी रोटेशन से। इस साल कर लिया, 1-2 साल बाद फिर कर लेंगे, लगातार नहीं करते। जैसे कि गूगल के बारे में बता रहे थे शर्मा साहब, बॉस मीडिया के बारे में, रॉन्ग टेक्निक ऑफ टैपिंग, उससे ही तो पेड़ों को नुकसान होता है। हमको कट कैसा लगाना है, जो साइंटिफिक मेथड है, जो आदिवासियों का परंपरागत तरीका है, वो नहीं फॉलो कर रहे। पूरी दम निकाल लो, पूरी दम निकाल लो, पूरा का पूरा गूगल, पूरा का पूरी गोंद एक बार में निकल आए, ऐसा चीरा मार देते हैं। चीरा लगा, गम निकाल ली, और जो घाव बनता है वहां पर इंफेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का, फंजाई का। मेरे ग्वालियर के हमारे आसपास तो पूरी सलाई का फॉरेस्ट नष्ट कर दिया ठेकेदारों ने, पूरे मर गए।
गॉन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, अब देखिए चिरौंजी, बुचनानिया लैंडर, चिरौंजी को वो गौंड लोग पेड़ को नहीं काटते। आज बाजार में जाए तो चिरौंजी मैं समझता हूँ 2000 रुपये किलो से कम नहीं मिलती है, इतनी महंगी। और जब हम छोटे थे बचपन में बहुत चिरौंजी मिलती थी, सस्ती मिलती थी। तो हमारे यहाँ गुना जिला जो है वहां पर बहुत चिरौंजी होती थी, अब चिरौंजी नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं वहां पर गौंड ट्राइब कि वो पेड़ को नहीं काटते, उसकी शाखाओं को जो गिर जाती हैं, वो भी गिरी हुई शाखाओं को वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, गाने वाने के लिए छोटे छोटे से, उसके लिए वो उपयोग में लाते हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है डिलेनिया इंडिका। ये इसके फ्रूट को जब तक वो पूजा नहीं कर लेते तब तक उसके फ्रूट को बिल्कुल नहीं खाते। वो जानते हैं इसकी पूजा का टाइम आ गया, इसका मतलब फ्रूट मैच्योर हो गया, और पूजा करके ही फिर वो खाया जाता है। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल के लोधा है, कई प्रकार के टबूज हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये बड़ा अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। मैं श्योपुर कला, आपने नाम सुना होगा, ग्वालियर के पास में डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर कला, वहां सरिया ट्राइब रहते हैं। मैं जब उनके बीच में गया तो हम ऐसा नहीं है कि जाते ही पहले पूछने लगे कि क्यों, कौन सा पौधा उपयोग में लाते हो, इसका क्या उपयोग, नहीं, पहले मिंगल होने की कोशिश की है। उनको ये ना लगे कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन करने या हमारे ज्ञान लेने आए। तो हमने पूछा कि आपके कुल गोत्र कौन से होते हैं, क्लांस क्या है। हम लोगों के भी कुल गोत्र होते हैं अलग अलग सबके। तो भाई सरप्राइज, उनके क्लांस जो हैं, कुल गोत्र हैं, वो पौधों के नाम पर है। जैसे पीपल बरोदिया, पीपल को पूछते हैं, पीपल की पत्ती अगर रास्ते में गिरी हो, वो जा रहे हो तो हाथ से पत्ती हटा देते हैं। शादी के टाइम पे दूल्हे के सिर पर 3 पत्ती बांधते हैं, उस सहरिया पर। सेमलिया, सेमल का पेड़ होता है, जो इसके गोत्र के लोग हैं वो उसको नहीं काटते बिल्कुल। धामनिया, जो धौ होती है एनोवाइसिस, उसको नहीं काटते हैं। इसी प्रकार जो दूसरे सोर ट्राइब हैं, जो हमारे यहाँ पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां में गया तो सिरिसिया, सिरिस का पेड़ होता है। सलैया, बॉसमीडिया सीरेटा, उसको बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाते। सैमरिया, जो समारिया, जो क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है ना, जिससे जो बनती है रस्सी, उसकी बुनी हुई खाट पर नहीं बैठते वो कहते हैं हम हमारे गोत्र का है, हम उसको पूछते हैं। तो इस प्रकार ये आदिवासियों की। तो फिर मैं संथाल ट्राइब में भी गया, मैंने वहां भी रिकॉर्ड किया कि इतने तरह के कुल गोत्र हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर प्लांट। बहुत से ऐसे गोत्र हैं जो जानवरों के या वो पक्षी को नहीं मारते, एक पर्टिकुलर पक्षी का शिकार नहीं करेंगे कि वो हम उस गोत्र के हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार बंगाल के और अंडमान के, अब देखिए डायोस्कोरिया, जो जमीकंद होता है ना जमीन में, पहले इतनी स्पीशीज मिलती थी हमारे देश में, आज मिलती नहीं है। क्या कारण है कि हम जब जमीन से उखाड़ते हैं लोग, तो पूरा का पूरा उखाड़ ले जाते हैं। अरे भाई थोड़ा सा छोड़ो जिससे अगले साल वो पनप जाए। तो वो लोग अंडमान में जो डायोस्कोरिया होते हैं वो उसको नहीं उखाड़ते हैं, इज नॉट डग इन रेन्स, बरसात में, क्योंकि बरसात में इसके बढ़ने का टाइम होता है। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार जो कादर, मैंने जमीकंद की बात बताई, डायोस्कोरिया इसको कहते हैं, वो कादर तमिलनाडु के ट्राइब्स हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जब तक, क्योंकि नीचे तो कंद है, बढ़ रहा है, और ऊपर उसकी बेल, ऊपर का भाग क्लाइंबर की टाइप तरह है, तो वो जब तक उसकी ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्ती होती हैं, तब तक बिल्कुल नहीं छूते उसको। और जैसे ही पत्तियों में येलोइंग शुरू हो जाती है, पीलापन आना शुरू हो जाता है, तो आदिवासी समझ जाते हैं अब पक गया है। तब उसको संभाल कर वो उसको खोदते हैं और उसमें से थोड़ा सा भाग निकालते हैं, बाकी भाग को फिर मिट्टी दबा देते हैं, अगले साल फिर हो जाता है। ये सही तरीका है। दिस इज द वे ऑफ कंजर्वेशन। न्यूट्रिशनल स्टेटस, हमारे आसपास इतने पौधे होते हैं, हमको उनकी जानकारी नहीं है कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, उनकी पौष्टिक क्षमता कितनी है। तो मैं जब वो शहरी आदिवासियों में श्योपुर गया तो मैंने उनसे पूछा कि जब कभी अन्न नहीं होता, खेत में कुछ उगा नहीं पाते हैं, अकाल सा पड़ता है, तो आप क्या करते हैं? तो वो बोले कि हम कुछ पौधे हैं
उन पौधों को संभाल के रखते हैं, सुखा के रखते हैं, बीजों को सुखा के रखते हैं और फिर उनको खाते हैं। तो जो एकाइरेंथस एस्पेरा, ये मैं अभी बताता हूँ, आधा झाड़ा जैसे कहते हैं, एकाइरेंथस एस्पेरा, यहाँ आपके यहाँ भी बहुत होता है, हर जगह बहुत होता है। उसके बीजों को इकट्ठा करके रखते हैं वो इमरजेंसी के लिए, और 15 से 20 ग्राम बीज लेके और दूध में डाल के खीर बना के वो खा लेते हैं। दे डू नॉट फील हंगर फॉर 5 days। 5 दिन तक वो कहते हैं भूख नहीं लगती, इतना न्यूट्रिशियस होता है। और जैसा कि शर्मा साहब ने बताया कि ये प्लांट जो है ना, जो अमरैंथेसी और चिनोपोडिएसी के प्लांट्स हैं, अमरैंथ कहते हैं, बथुआ वगैरह हम खाते हैं, चौलाई खाते हैं, ये सबसे ज्यादा पौष्टिक होते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तब मैंने फिर लिटरेचर सर्वे किया कि मैं ये जानना चाहता था कि मेरे इलाके में, ग्वालियर के आसपास कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। तो मुझे ये 10 पौधे मिले तो बहुत, लेकिन मैंने इन 10 स्पीशीज को सिलेक्ट किया। अब ये ऑक्जेलिस कॉर्निकोलेटा है, ये बरसात होगी आ जाएगा, चौपत्तियां कहते हैं इसको, खट्टी बूटी भी कहते हैं, 4 पत्तियां होती हैं। वो मोरिंगा, सहजना आप जानते ही हैं, ये सब ये मैंने बताया। एकाइरेंथस, वाउनिया बाइलाई, पचमढ़ी के जंगलों में एक क्लाइंबर होता है, लकड़ी जैसा क्लाइंबर, लाइना कहते हैं, उसके बीज जो होते हैं वो इमली की तरह होते हैं। तो वो लोग इमरजेंसी में उसकी इमली को रखते हैं और उसको कूट कर पाउडर बना के खाते हैं। वो कहते हैं इतना पौष्टिक है ये कि हमें कमजोरी महसूस नहीं होती। हम लोग आजकल बाजार में कितना इम्यूनिटी और इसके लिए खरीद रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिक्स का जमाना है आज के टाइम, तो हर कोई न्यूट्रास्यूटिक्स की बात करता है। तो ये एमरैंथस मैंने बताया कितना होता है हमारे यहाँ ये बरसात के टाइम में। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, और मैं डॉक्टर अनीता जी से कहूंगा कि आप तो अपने विद्यार्थियों के, अपने लोकल जो इतना अच्छा कैंपस है, इतना रिच है बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट से, आप तो एक लिस्ट बना के और हर प्लांट की प्रॉपर्टी आप बताइए कि इसकी क्या वैल्यू है। वो आपकी सही मायने में इथनोबॉटनी की टीचिंग होगी। केशिया पवार कहते हैं, ये केशिया कितना उगता है बरसात में, पूरा छा जाता है मध्य प्रदेश में, आपके राजस्थान में। बोराविया डिफ्यूजा कितना होता है आपके यहाँ, ये सब लोकल स्पीशीज हैं। ये छेको तो है ही है, प्रोसोपिस सैनेरिया, खेजड़ी, खेजड़ी बहुत पौष्टिक होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। रस फार्मी फ्लोरा, अमलतास, केशिया फिस्टुला। तो मैंने इनको लैब में ला के प्रयोग किया, इनकी बायोकेमिकल एनालिसिस की मैंने, एंड आई फाउंड दैट ऑल आर वेरी वेरी न्यूट्रिटिव। फैट वैल्यू, प्रोटीन वैल्यू, ये वैल्यू, वो वैल्यू जो हम चाहते थे वो सब वैल्यू इन पौधों में है, जिनको हम इग्नोर किए हुए हैं, हमको जानकारी ही नहीं है। तो हमको ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार जो इरुला है, मलयाली हैं, ये सब हैं, वो भी अपना कंजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए, शर्मा साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक ही तरह की चीज नहीं, कई तरह के बीज डाल दिए, ये भी उग रहा है, वो भी उग रहा है। हम यूजुअली करते क्या है, एक ही प्रकार की खेती कर ली। लेकिन इन आदिवासियों में MCS, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम बड़ा पॉपुलर है, स्पेशली साउथ इंडिया में। वहां पर वो अपने जमीन पर कई सारे तरह के बीज डाल देते हैं। उन्होंने बताया था ना, अरे एक नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम, और इसी प्रकार जो मिलेट्स हैं, फिंगर मिलेट्स हैं, एमरंथ की लीव्स हैं, पल्स है, कैस्टर, ये सब मिक्स करके वो लोग ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार एमरंथ के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट, ये किस प्रकार अपने बीजों को स्टोर करते हैं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है ये सब कि मिट्टी के बनाते हैं। जो कंजर्वेशन का तरीका है वो बड़ा अच्छा है इनका, और इस कंजर्वेशन के तरीके से वो अपना बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और ये दूसरे हैं वाटर रिसोर्सेज, रीजनरेशन, कंपनसेटरी, ये सब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इनसे होता है। सेक्रेट ग्रोव की बात आई थी, ये सेक्रेट ग्रोव या देववन हमारे पूरे देश में छोटे या बड़े मिला के 1 लाख देववन है। ये देववन क्या होते हैं, कुछ पेड़ों का झुंड है, समूह है, छोटे से एरिया में है, एक मंदिर के आसपास भी होता है, और कुछ जगह जंगल भी है बड़े बड़े। तो उनमें कोई ना घुसता ना उनको डिस्टर्ब करता, उनकी बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट्स को। तो हमारी बहुत सारी स्पीशीज तो इसीलिए बची हुई हैं कि ये
इस प्रकार के ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो हमारे देश में हैं। नेक्स्ट प्लीज। और इनको अलग अलग नाम से कहते हैं, जैसे कि देवराय भी कहते हैं, देवार कंद भी कहते हैं, सिद्धरवनम भी कहते हैं, ये सब अलग अलग जगह पर कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये भी कलेक्ट उनके कंजर्वेशन का तरीका है। नेक्स्ट। अब मैं ये बात में आता हूं कि इस इथनोबॉटनी का विकास कैसे हुआ। परिभाषा तो अभी दी गई 100 साल पहले, करीब 150 साल पहले, लेकिन जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमने इसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया। प्री क्रिश्चियन या प्री हिस्टोरिक एरा, जिसमें कि पौधों के बारे में जानते थे और कई रूपों में कई प्रकार से उनको डिस्क्राइब भी किया गया। फिर अर्ली क्रिश्चियन एंड मिडिवल पीरियड, जब रिटिन टेक्सचर हमारे सामने आया, लिखी गई किताबें, बहुत सारे संहिताएं लिखी गई और सारे ग्रंथ लिखे गए, आयुर्वेद के दूसरे देशों में भी लिखे गए, तो वो पीरियड आया फ्रॉम 15th to 19th century when economic botany focused on indigenous usage of plants। 15 से लेकर 19वीं शताब्दी तक इकोनॉमिक बॉटनी का बहुत जोर रहा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका इकोनॉमिक यूज है, प्रकार से अलग अलग प्रकार से यूज है, हम इनसे अपनी इकोनॉमी, अपनी जो है फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रेज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने उनकी रिलेशनशिप को स्थापित करना शुरू किया, जो हम कहते हैं एथनोबॉटनी। व्हाट इज मैन प्लांट रिलेशनशिप, मनुष्य की पौधों से क्या संबंध है, इसको हमने स्थापित करना शुरू किया और ये ज्ञान हमारे सामने आया। और अब मॉडर्न पीरियड में तो बहुत सारे न्यू अप्रोचेज हैं। आज ड्रग इंडस्ट्री कितना आगे है, फार्मेसी वगैरह ये सब कितनी आगे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कितनी आगे है और मेडिसिनल प्लांट्स पर काम हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। जब हम पत्थर युग की बात करते हैं, न्यू स्टोन एज की, जो करीब ईसा के 8000 से 5000 साल पहले तक था, उस समय भी लोगों को ज्ञान था और उस समय के भी प्रमाण मिलते हैं कि लोगों को पॉपी है और ये सेम्बकस है और जो फ्यूमेटरी होती है, ये फ्यूमेरिया पौधा है, ये सब पौधे, पौधों के बारे में उन लोगों को जानकारी थी इतने 1000 साल पहले। नेक्स्ट प्लीज। एंशिएंट मेसोपोटामिया, जिसे हम वर्तमान में इराक कहते हैं, जहां आज कुछ नहीं है, वहां पर सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई थी और वो लोग इतने ज्ञानी थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ जाना। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में ये था और इस सुमेरियन सभ्यता में जो इसके ज्ञानी थे, जो जानते थे इन सब पौधों के बारे में, उनको आशिकू कहा जाता था। आशिकू। नेक्स्ट प्लीज। उन्होंने इस प्रकार की टैबलेट्स बनाई थी, ये मिट्टी की बनी हुई है, ये टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स। मतलब कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने मिट्टी की ये क्ले टैबलेट्स बनाई और इन पर उन्होंने भाषा को इंस्क्राइब किया और इसमें पौधों के उपयोगिता के बारे में लिखा हुआ है। ऐसी हजारों टैबलेट वहां से प्राप्त हुई, मेसोपोटामिया या आज का जो इराक है वहां से। इसी प्रकार इसी सुमेरियन सभ्यता में आप देखिए एक महिला के सिर पर जो हेड ड्रेस बना हुआ है, कितने अच्छे उन्होंने पत्तियों से और ऊपर फूल फूल से सजाया हुआ है। एक मॉडल है जो वहां के म्यूजियम में है। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार इजिप्ट में जो अरब कंट्रीज हैं आज उधर, वहां पर वो सभ्यता भी बहुत विकसित थी और वहां के लोगों को बहुत ज्ञान था। और काहुन नाम के एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने एक ग्रंथ पेपाइरस, इस पेपाइरस की खोज की वहां से, इजिप्ट से। और ये सिविलाइजेशन भी आप देखिए 3100 से लेकर 30 BC तक था, नील लेवल के आसपास। नेक्स्ट प्लीज। पेपाइरस क्या है? इट्स ए राइटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम द पेपाइरस प्लांट, दैट इज साइप्रस पेपाइरस। ये पेपाइरस इसलिए कहा जाता है कि साइप्रस पेपाइरस से इसको बनाया गया और फिर उस पर उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिख के लिखाई शुरू की, पौधों की उपयोगिता के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा। पेपाइरस रोल, ये जो ममीज वगैरह होती है ना,
पिरामिड्स वगैरह में मम्मी पाई जाती हैं और भी। तो एक जगह मम्मी में क्या देखा कि करीब करीब 20 मीटर लंबी ये पेपायरस रोल मिली, 20 मीटर लंबी, और पूरी की पूरी जो रोल थी वो लिखी हुई थी, पौधों के बारे में उसमें वर्णन था पेपायरस रोल में। मैं सब चीजें बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं समय की वजह से। तो इस प्रकार 800 डिस्क्रिप्शन अबाउट डिजीज एंड सिम्टम्स, 800 डिस्क्रिप्शन तो बीमारी और उनके सिम्टम्स के बारे में इस पेपायरस रोल में था। प्रिपरेशन ऑफ मम्मी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, कैसे उन्होंने उन चीजों को इजाद किया, डिस्कवर किया कि जिससे वो मम्मी सुरक्षित रहे, और उसके लिए बहुत सारे औषधि उपयोग, पौधे उपयोग में लाए, बहुत प्रकार के ऑयल वगैरह ये सब। तो इसलिए बाम या मम्मीफिकेशन, और इसमें क्या एसेंशियल ऑयल ऑफ सेडार, कैम्फर, जूनिपर, रेजिन्स ऑफ पाइन, केशिया स्पीसीज, नर्रा, वाइन ऑफ पाइन, पाम, सिनामोम, थाइन, इस प्रकार के कई सारे पौधों का उपयोग वो करते थे, और उससे वे मम्मी को पूरा लपेटते थे और उसके छिड़काव करते थे, और जो कपड़ा बांधते थे चारों तरफ वो उसमें भी इस प्रकार के औषधि पौधे होते थे। हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जो डॉक्टर बनते हैं वो हिप्पोक्रेट्स की शपथ लेते हैं डिग्री लेने के पहले। हिप्पोक्रेट्स ने जो ईसा के लगभग 460 साल पहले हुए, उन्होंने कॉर्पस हिप्पोक्रेटियम एक मतलब उन्होंने अपने जो लिखी 50 बुक्स उसको इसमें कंपाइल किया गया, और इसमें बहुत सारे मेडिसिन, इसमें करीब 50 बुक्स हैं इसमें कॉर्पस हिप्पोक्रेटिकम में, और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल पौधों की जानकारी है। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार ये थियोफ्रास्टस हम जानते हैं, बॉटनिस्ट, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने बहुत सारे पौधों की जानकारी दी। नेक्स्ट। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको न केवल बाहर के बल्कि हमारे देश में ही इतना भंडार भरा पड़ा है, और महाभारत में, रामायण में इतनी सारी मेडिकल ट्रीटीज लिखी गई, उन सब में ये सब वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आई हमारे यहाँ? स्कल्पचर से, रिटिन रिकॉर्ड, हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ मिले, एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इनसे भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्लीज। और हम जो अपना जो संस्कृत लिटरेचर है जिसमें ये ज्ञान भरा पड़ा है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सैक्रेड, जो हमारी सैक्रेड बुक्स हैं, पवित्र किताबें हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है। दूसरा ले लिटरेचर, जिसमें कविताएं लिखी गई और नाटक लिखे गए, नाटक के रूप में भी उन्होंने प्रकृति का वर्णन कर दिया, औषधीय पौधों का वर्णन कर दिया। कालिदास की मेघदूत केवल एक साहित्य या केवल सुंदरता का वर्णन करने का नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट ने कालिदास के मेघदूत पर पीएचडी, मैंने पढ़ा तो मैंने कहा इस पर तो काम करना चाहिए। उसमें उसको करीब करीब 150-200 स्पीशीज ऐसी मिली कि कालिदास ने वर्णन किया कि तुम उज्जैन जाओगे, उसके माध्यम से, पक्षी के माध्यम से उज्जैन जाओगे तो ये वन मिलेगा, ये फूल खिल रहा होगा। दक्षिण भारत में जाओगे तो इस प्रकार के जंगल मिलेंगे, ये पक्षी होगा, ये फूल होगा, ये औषधीय पौधा होगा। वो तो पर्यावरण का ही ग्रंथ है मेघदूत। तो कालिदास का, माघ का, भवभूति ने बहुत अच्छे नाटक लिखे और अपने नाटकों में प्रकृति का और औषधीय पौधों का वर्णन किया। इसी प्रकार जो टेक्निकल लिटरेचर, जिसमें कि हम चरक संहिता की बात करते हैं, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, निघंटु वगैरह, वृक्षायुर्वेद, ये सब, तो ये 3 सोर्स हमारे पास में थे। नेक्स्ट प्लीज। जब हम अपनी इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वेदों में बहुत सारे पौधों का वर्णन किया, और सबसे ज्यादा तो अथर्ववेद में लगभग 228 पौधों का वर्णन किया है। ब्राह्मण से लिखे गए, कल्प सूत्र लिखे गए जिसमें 519 पौधे, चरक संहिता लिखी गई, और चरक संहिता तो सबसे पहला ग्रंथ था, और इसको 50 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया, वर्ग ग्रुप्स। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता, बाघवट, सबके मैंने जो किस वर्ष में उनको लिखा गया, सारंगधर संहिता, भाव प्रकाश निघंटु, देवदास, काशीराज, राज निघंटु उन्होंने लिखा, मदन पाल, लाला सालिग्राम ने सालिग्राम निघंटु लिया। इन सब में अथाह भंडार बड़ा पड़ा है, औषधीय पौधों का ज्ञान है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है जो बहुत पहले लिखा गया, वृक्षायुर्वेद, ईसा के भी पहले कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईसा के 1 शताब्दी बाद में। इस ग्रंथ में तो ऋषि पाराशर ने कमाल कर दिया।
उन्होंने यहां तक लिखा कि जैसे मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वात पित्त और कफ प्रकृति से पीड़ित होता है, ऋषि पाराशर पौधे को देखकर बता देते थे कि ये वात प्रकृति, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति किससे पीड़ित है। आज हम जो नई फ्लोरिकल्चर और ये सब कर रहे हैं ना, ये फूल में ये खुशबू देना, इस तरह के अनटाइमली फूल खिला देना, ये कर देना, कोई पौधा फल नहीं दे रहा है, अनाज नहीं दे रहा, तो कैसे। ऋषि पाराशर ने इस वृक्षायुर्वेद में सब कुछ लिखा है, अथाह भंडार है इस वृक्षायुर्वेद का, और उन्होंने ये अलग अलग कांडों में विभाजित किया, बीजोत्पत्ति, वनस्पति वगैरह ये सब। नेक्स्ट प्लीज। फिर ये केवल ये बताना चाहता हूँ कि डच कंपनी जो आई, पुर्तगाली जो आए, उन्होंने कर्नाटक और गोवा के आसपास राज्य किया, और एक उनका जो लीडर था उनका नाम था वान रीड। वान रीड ने एक किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने बहुत सारे 740 पौधों का उन्होंने वर्णन किया, लेकिन वो खुद उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने एक्सप्लोर किया। उन्होंने अपनी टीम को पूरे ट्राइबल इलाके में भेजा, पश्चिमी घाट के, और उन ट्राइबल इलाकों से और हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर था, प्राचीन साहित्य था, उससे उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस प्रकार उन्होंने उस किताब को नाम दिया हॉर्टस मालाबारिकस। नेक्स्ट प्लीज। फिर कलकत्ता में एक एग्जीबिशन लगी, उसमें उन्होंने सोचा, जॉर्ज वार्ड थे, उन्होंने कहा कि ये तो हम एग्जिबिट करें, दिखाएं लोगों को कि हमारे देश में, इस भारतवर्ष में कितने प्रकार के पौधे हैं जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वो प्रदर्शनी उन्होंने की, और उसके बाद में उन्होंने डिक्शनरी लिखी, डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई, और आज हम उस डिक्शनरी को रिवाइज फॉर्म में देखते हैं, उसका नाम है वेल्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्लीज। टर्म इथनोबॉटनी की बात आती है, सभी जानते हैं जो इथनोबॉटनी पढ़ते हैं कि 1896 में जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो बॉटनिस्ट नहीं थे, वनस्पति शास्त्री नहीं थे, वो जब साउथ अमेरिका के जंगल में गए, तब उन्होंने देखा, अरे पौधों का और आदिवासियों का तो इतना रिलेशनशिप है, इतना वो है, तो उन्होंने ये टर्म दिया इथनोबॉटनी। लेकिन ये इथनोबॉटनी टर्म दिया है, ये इथनोबॉटनी तो हमारे देश में हजारों साल से चली आ रही है, टर्म केवल उन्होंने दे दिया। उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग हुए, और हमारे पूज्य डॉक्टर एस के जैन साहब ने तो हिंदुस्तान में क्रांति ही फैला दी, इसलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी। और कई प्रकार की फील्डें जो इसमें शामिल होती हैं, मतलब आदमी अगर काम करना चाहे इथनोबॉटनी पे, तो किसी भी फील्ड का हो, वो चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे बायोलॉजिकल साइंस का हो, किसी का भी हो, वो काम कर सकता है। हिस्ट्री कंसर्न, एग्रोनॉमी, लिंग्विस्टिक, कोई आदिवासियों की भाषा पे काम करना चाहता है, लिंग्विस्टिक की फील्ड है, तो ये अनेक प्रकार की फील्ड है। नेक्स्ट प्लीज। अब मॉडर्न कंसेप्ट आया, आज का जो कंसेप्ट आया सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आज इस पर बहुत ध्यान दिया गया। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन, एथिक्स, डिमांड, कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग इंडिजिनस पीपल, कैपेसिटी कैसे हम डेवलप करें, फिर शेयरिंग बेनिफिट, हमने एक तरफ का लाभ ले लिया, इन लोगों से ज्ञान ले लिया, अपनी दवाई बना के बाजार में बेच दी और पैसा कमा लिया, लेकिन यहाँ बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूंगा, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट करवाया था डॉक्टर पुष्पांगन ने 94 में, आदिवासी जो कानी आदिवासी केरल में रहते हैं, वहां पर वो गए, उन्होंने देखा कि एक पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा उससे शक्ति मिलती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, और उन्होंने उस पौधे की खोज की, और फिर उस पौधे को उन्होंने एक फार्मेसी को कहा कि तुम इसकी दवाई बनाओ, वो जीवनी के नाम से वो दवाई मिलती है, उस पौधे का बोटैनिकल नेम है ट्राइकोप्स जैलेनिकस, जीवनी के नाम से। बदले में क्या किया पुष्पांगन साहब ने, जितनी इनकम होगी उसका एक बहुत अच्छा भाग इन आदिवासियों को जाएगा। ये होती है बेनिफिट शेयरिंग, हमने ज्ञान लिया है तो हम उनको देना भी चाहिए। और इसी के कारण डॉक्टर पुष्पांगन को वर्ल्ड का बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया था, इसी के लिए। डॉक्टर जानकी अम्मल बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर थी, और सबसे पहले एथनोबॉटनी इन्होंने ही एस्टेब्लिश की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कि यहाँ पर एथनोबॉटनी की लोगों को साइंटिस्ट को इस तरीके होना चाहिए। फिर डॉक्टर एस के जैन, इन्होंने तो बहुत काम किया, इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा पीछे कर लीजिए। हाँ, इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारे सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिस्ट, इतने सारे पेपर पब्लिश किए, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की,
इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोबायोलॉजी इन्होंने स्थापित किया, जो कि हमारे ग्वालियर में है। नेक्स्ट प्लीज। इतनी सारी फील्ड्स हैं इसकी, ये इंटरडिसिप्लिन्स हैं, वो सब डिसिप्लिन्स हैं, इथनो फार्मेकोलॉजी, मेडिसिन, गायनिकोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स हैं इसकी। उन्होंने डॉक्टर सकलानी साहब ने जो ड्रग के बारे में बताया था, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं और उनका क्या इफेक्ट है, स्टिमुलेंट क्या है और कौन से प्लांट से उनको निकालेंगे। तो ये सब नॉलेज इथनोबॉटनी के ज्ञान से ही आई। हमने इनसे सीखा कि ये पौधा किस में उपयोग में लाते हैं, हमने लैब में प्रयोग किया, हमारे वैज्ञानिक होने में अपनी बात नहीं कर रहा, और फिर ये दवाइयाँ बनाई, इनके नाम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं, और इन पौधों से उन्होंने ये। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत सारी सोसाइटीज हैं यहाँ इथनोबॉटनी के नाम पर एस्टेब्लिश्ड हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे देश में तो मैंने बताया था इतनी कम्युनिटी हैं और बहुत सारे स्पेसिमेन, करीब करीब 500 PhD थीसिस इथनोबॉटनी पे हो चुकी हैं। अब तो नंबर और भी बढ़ गया होगा, 100 जर्नल्स छपते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट प्लीज। द अनटायरिंग जर्नी, अथक प्रयास, जिससे कि आज हम इस स्टेज पर आए हैं इथनोबॉटनी के अध्ययन से, जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में सोचना शुरू किया है। जर्म प्लाज्म को हम कंजर्व कैसे करें। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में धान की 20,000 वैरायटी होती थी 100 साल पहले। आप विश्वास कर सकते हैं कि 20,000 वैरायटी धान की। अकेले रायपुर से प्रोफेसर अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, कॉमन में धान का कटोरा। प्रोफेसर अग्निहोत्री ने अकेले छत्तीसगढ़ से करीब करीब 10,000 वैरायटी धान की इकट्ठा की। लेकिन आज अधिकांश क्षेत्र में हमारे देश में 200 से 300 वैरायटी ही कल्टीवेट की जाती है, बाकी को इग्नोर कर दी है। तो जरूरत है कि वो जर्म प्लाज्म का हम कंजर्वेशन करें। अगर आपका इतना बड़ा एरिया है, उसमें 1/10 भी आप छोड़ दीजिए जगह कि हम यहाँ जो परंपरागत वैरायटी है उनको कल्टीवेट करेंगे। इस बारे में भी आपको उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इनको इग्नोर मत करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेयर स्पीशीज, न्यू ड्रग डिस्कवरी, क्रेडिबिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये सब जितने भी जो हैं इनके बारे में। नाउ अर्जेंसी, मैं जो बताया था फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अर्जेंसी क्यों है इसकी? द रैपिडिटी विद विच एनवायरमेंटल डैमेज ऑकर्स टुडे, जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इतनी फास्ट स्पीड से हो रहा है, तो अगर हमने इन औषधीय पौधों के इथनोबॉटनी के बारे में ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा आगे? द रैपिड लॉस ऑफ फ्लोरिस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, state of absolute material poverty of most of the indigenous and Fijian people of tropical region, especially tropical region में, and the demands of these people for solution. इनकी डिमांड है, सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। The future prospects, indigenous knowledge and ethnoscience need to be integrated with biotechnological approaches. आज हमको बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस फील्ड में, बाकी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ये सब तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र में भी हमको आगे आना पड़ेगा। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक फोकस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग इंक्लूडिंग यूज ऑफ पेटेंट के बारे में। हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने करा लिया। वो हमारे भारतीय वैज्ञानिक ही थे कि जो उन्होंने अमेरिकन हो गए और उन्होंने पेटेंट करा लिया। जब हमने मुकदमा दायर किया तो अमेरिका की कोर्ट ने पूछा, आपके पास में कोई रिकॉर्ड है, कोई प्रमाण है कि हल्दी आपकी है, आपकी बपौती है हल्दी? तब हमारे यहाँ से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, शारंगधर संहिता, 11 ग्रंथ गए थे अमेरिका की कोर्ट में, और उन ग्रंथों में बताया गया कि देखिए, सिंस टाइम इमेमोरियल इंडियंस हैव बीन यूजिंग हल्दी। तब जाके अमेरिका की कोर्ट ने वो पेटेंट कैंसिल किया था। हमको इस बारे में इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, हम रिकॉर्ड में लाएं, उसको ऑथेंटिक जर्नल में पब्लिश करें, सरकारी नोटिस में लाएं हम उस चीज को। नेक्स्ट प्लीज। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर बोथ ग्लोबल एंड लोकल लीगल फ्रेमवर्क भी बहुत जरूरी है। कहाँ इनका दोहन हो रहा है इन लोगों का, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ये सब चीजें। देन फ्यूचर डायरेक्शंस, एक्सचेंज ऑफ केस स्टडी, एनालिसिस एंड आइडियाज। डॉक्टर सकलानी साहब ने बताया था ना केस स्टडीज के बारे में, कि यहाँ एक पौधा किस पर्पज से यूज हो रहा है, और वही पौधा आसाम में किस पर्पज से यूज हो रहा है। तो अगर उसका कोई अल्टरनेट मिलता है
तो हमको उस पौधे को भी, हमारे यहाँ वो ज्ञान नहीं है, उनके पास में हमारे पौधे का ज्ञान नहीं है, तो हमको इस प्रकार के एक्सचेंज प्रोग्राम करने पड़ेंगे। उन्होंने 2 कंट्री के प्रोग्राम दिए थे, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का। तब पता चला कि बहुत सारे उनके पौधों की हमको जानकारी नहीं है, हमारे पौधों की उनको जानकारी नहीं है। तो हम जो प्रेशर एक ही पौधे पर पड़ रहा है, कुछ पौधा पड़ रहा है, अगर और पौधे भी उसी बीमारी को ठीक करने में काम में आते हैं, हमारे यहाँ पैदा होते हैं, तो हमको वो भी अडॉप्ट करना चाहिए। Sustainability in supply of wild plant resources, enhance the food security, nutrition and healthcare, prevention, recovery and diffusion of local botanical knowledge. बहुत जरूरी है ये, जो हमारी, हम पहले अपने यहाँ की बात करें, स्टार्ट करें हम अपने यहाँ से, ग्लोबल की बात, नेशन की बात बाद में करें। हमारे उदयपुर में क्या है, हमारे इस कैंपस में क्या है, फिर हम बात करेंगे राजस्थान में क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड एथनोबॉटनी विद इन यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल मिनिस्ट्री एंड अमंग पोटेंशियल स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज, इनमें हमको अवेयरनेस लानी पड़ेगी इसके बारे में। अब उन्होंने बताया था, आपने बताया था शर्मा साहब ने, कितने सुंदर सुंदर फूलों से और पत्तियों से उन्होंने अपने आभूषण बनाए हुए हैं। आज हम अपने ड्राइंग रूम में ये मॉडर्न चीजें रखना नहीं पसंद करते। किसी के ड्राइंग रूम में कोई ट्राइबल आइटम है, अरे वाह, उसको हम पसंद करते हैं। तो हम इस प्रकार की चीजों को, और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। आज जो बहुत सारे मेले भरते हैं, एग्जीबिशन होती हैं, उनमें ट्राइबल्स को बुलाते हैं, उनकी आर्ट को डिस्प्ले किया जाता है। तो कदम बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अंत में मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, ये स्थिति ना आ जाए हमारे देश में कि हम ये दृश्य देखें अपनी प्रकृति का। हमको इसको बहुत हरा भरा बनाना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, everybody. After such a detailed, elaborative, knowledgeable discussion, I think very little left for me to speak in context of the history, in context of the evolution, in context of how till this stage we have come. But I have certain things to question and I seek some answers from you too. First of all, in this workshop of seminar, national workshop on indigenous knowledge and the sustainable utilization of traditional food and medical plants, I, from Vidyavan Society point of view, I welcome Professor A.K. Jain and thank him for providing such a knowledgeable speech to all of us. The lecture was of immense potential. Then Professor S.S. Kateva, Dr. Anita Jain, Professor Kanika Sharma, T.B. Sharma ji, Bhagwati ji, Satish ji, Vartika ji, Chiranjeevi ji, students here and staff and honorable guests who have come to attend this conference. Now, the detailed discussion or detailed lecture has been given by A.K. Jain sir. Being a researcher, some people are doing some research also. As we know, the tradition and nature walks hand in hand in India and especially in Rajasthan. Now, all these things which our indigenous knowledge is, it is a cycle. That is the indigenous knowledge which was passed by scriptures or by our ancestors, and then it incorporated in religion, and from religious beliefs, the protection of such plants and medicinal things were known to us. Even our kitchen is a small pharmacy. So there are many things which we know, but we don't tell it to others, we don't spread awareness. Such type of seminars and workshops will be able to do such things. You remember COVID times when
everybody was thinking about immunity. Everyone. He was, making kadas and having tulsi leaves, ashwagandha, shatavari, giloy. So we all were, bothered about our health. And we were at that time very, very particular, even the government also, Rajasthan government, एक स्कीम लगाया कि भाई सब जगहों को 5-5 पौधे हर घर में भेजने हैं। भेजे थे ना, आप ट्राइबल भी बैठे हैं आपके घर में, सब घर में आए होंगे, और उसका एक रोटेशन ही फॉरेस्ट वाले भी बैठे हैं, वो सारे पौधे कैसे थे, उसमें था तुलसी, अश्वगंध, पनोस, कालमेघ। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो लोगों को अवेयरनेस के लिए दी गई, लेकिन क्या हुआ, उसका जब सेकेंड राउंड हुआ और हमने उसका एनालिसिस किया तो उसमें से 80% लोगों ने उन पौधों को अपने से लगाए नहीं, क्योंकि कोविड का फर्स्ट दौर जा चुका, सेकेंड दौर जा चुका। अगर इतना सब होने के बाद, इतने लोग बीमार होने के बाद और ये जानने के बाद कि हमारी नेचर ही में हमारा प्रोटेक्शन छुपा है और हम उसको बचा नहीं पा रहे या उसके लिए समझ के भी ना समझ बने हुए, और वो एक शमशाना बैराग टाइप चीज हो गई कि जब बीमार पड़ो तब इम्यूनिटी के बारे में सोचो, तब ये चीज सोचो। लेकिन एज रिसर्चर्स एंड वी हैव टू मेक सर्टन थिंग्स इन एक्शन। अभी जैसे प्रोफेसर ए के गुप्ता जी ने बताया, ए के जैन साहब ने, कि इतना बड़ा एक मूवमेंट चला शुरू से लेकर अब तक, और हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर उन सबके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन हम लोगों का कुछ कर्तव्य है, जो हमारे जैसे कॉलेज है, हमारे रिसर्चर, उनका कर्तव्य है कि इस तरह की चीज़ को किस तरह लोगों में अधिक से अधिक प्रोपोगेट किया जाए, किस तरह इसका कोडिफिकेशन किया जाए, किस तरह ऐसे कुछ नाटक किए जाएं, जिससे कुछ ऐसे चीज़ बनाए जाएं ताकि लोगों के अंदर वो भावना पहुंचे। मुझे ध्यान है कि सरकार के एफर्ट्स बता रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ कि सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के। उन्होंने ट्राइबल एरियाज में लैम्प्स बनाए, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो सिर्फ आदिवासियों की थी, और उसमें ये कहा कि आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आएंगे वो आप लेके आएँ और हम उसको वो लैम्प्स खरीदेंगे, और लैम्प्स फिर उसके एक एपेक्स राजस्थान करके एक एपेक्स बॉडी बनाएगी, वो एपेक्स बॉडी उससे सारा खरीदेगी, और जो बिचौलिए शोषण करते थे उन आदिवासियों का, वो शोषण खत्म हो और फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमारे पास आए। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे आदिवासी भी अब उससे जो पैसा कमाते थे वो उतना नहीं था, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉरेस्ट प्रोड्यूस की एक साल 1.5 साल बाद आती थी और उसमें बढ़ोतरी बहुत कम होती थी। तो उससे अपना जीवन यापन इकट्ठा करके और लाके देने से जीवन यापन नहीं हो रहा। जैसे ही फिर नरेगा स्कीम चली तो हमारे सब ट्राइबल भाइयों ने, बहनों ने उस चीज़ को छोड़ दिया और नरेगा में अपना काम करने लगे कि भाई इतने रुपए हमें रोज के मिलेंगे। सो एग्जैक्टली व्हाट, कहाँ गैप आया, एक स्टडी होनी चाहिए इस पे कि हमारा ट्राइबल एरिया के अंदर, स्पेशली हमारे ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर किस तरह से ये जो एक परिपाटी थी जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी और मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, परंतु हमारे आदिवासियों ने वो कलेक्शन भी छोड़ दिया और एक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होने के कारण ये किया गया। वो खुद के पर्पस के लिए तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो इकट्ठा करके एज इकोनॉमिक उनका एक वो करना था। और धीरे धीरे फिर जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, आपने देखा होगा कि कोविड के बाद किस तरह से आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों का एक मशरूम ग्रोथ हुई और सब किसी न किसी तरह की इम्यूनिटी दवाइयाँ निकालने लगे। पतंजलि एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक एक उद्योग बन के उभरा और साथ ही बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लोग भी आयुर्वेदिक अपने घरों के अंदर उन्होंने खोल लिया।
और सबको मालूम था कि अश्वगंध है, ये अच्छी है, सबको मालूम है शतावरी अच्छी है, सबके मिक्सचर बनाओ और एडवर्टाइज करके बेचो। ये इससे चीज़ अच्छी ये हुई कि हमारा जो एक्सपोर्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन का था वो काफ़ी बढ़ा और विदेशों में भी हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि हमारी जड़ी बूटियों से बनी हुई है उसका एक लोहा लोगों ने माना कि सबसे कम जो इतना व्यापक देश है भारत और उसमें सबसे कम लोग एज परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पर डेथ्स हुई एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड रीजन्स। पहले फेज में तो हमारे शहर के अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी वो कोरोना उसको अफेक्ट भी नहीं कर पाया। तो जब ये देखा गया तो ये हमारी मेडिसिन का प्रचलन दूसरी जगह हो गया और अब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बढ़ गया है और वहाँ मेडिसिन का बनाई जा रही है और उसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक और आज के इस वर्कशॉप में एक और चीज़ है इंडिजिनस फूड। हमने इंडिजिनस प्लांट्स मेडिसिन उनकी तो बात बहुत कर ली, लेकिन यदि आपको मालूम हो कि हमारे व्यवहार में हमारे दोहों में वो चीज़ें आती थी कि हमें कौन से सीज़न में क्या चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ों से परहेज रखना है, ये सारी चीज़ें भी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, ट्रेडिशनल गानों के माध्यम से बच्चों को भी सिखाई जाती है। और हमारा जो बेसिक फूड था वो मिलेट ही था। गेहूँ तो बहुत बाद की उपज है, बाकी हम लोग इतनी वैरायटी ऑफ मिलेट्स होते थे कि हम लोग वही खाते थे, मिलेट्स खाते थे, मेज खाते थे। और ये क्योंकि उसमें पौष्टिकता भी ज़्यादा थी और हमारे यहाँ पर कम पानी में उनका उपजाऊ भी हो जाते थे और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ता था। तो हम ओरिजिनली जो चीज़ें खाते थे और हमारे पूर्वज ने हमको ये सिखाया कि इस सीज़न में यही खाना है, ये नहीं खाना है। दही कब अवॉइड करना है, कब हमें खटाई अवॉइड करनी है, कब हमें गोभी और भिंडी नहीं खानी है, कब कौन से सीज़न में क्या खाना है। तो ये वहाँ से चला आ रहा था और वो उसी हिसाब से कि हमें बीमारियाँ ना लगे इस सीज़न में ये खाना नहीं है। पर चूँकि जब साइंस का जब डेवलपमेंट होता है और लोगों को नई नई टेक्निक्स आती हैं तो ऐसे फल या ऐसी सब्जियां जो सीज़न में कभी उगते ही नहीं थे वो आज 12 ही महीने मिलते हैं और वो या तो उस वक्त का कोल्ड स्टोरेज का रख दिया जाता है या इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं कि वो उग भी जाएं और मिल जाएं। लेकिन आज भी वो टेस्ट चाहे उस सीज़न की सब्जी का हो या फल का हो जो सीज़न में नहीं उगती है उसका टेस्ट में और सीज़न में उगी में बहुत फ़र्क है क्योंकि वो नेचुरल जो सीज़न है उसका। तो हमें ये बताया भी गया है और हम ये करते भी हैं कि गुड़ कब खाना चाहिए, गुड़ तो लेकिन हम सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। और यही चीज़ है कि आज मॉडर्न वर्ल्ड रीडिस्कवर कर रहा है हमारे इस सारी एंशिएंट नॉलेज को, और चाहे वो हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, और उसका उपयोग और उसकी जानकारी। अभी हमारे देश में भी लोगों को अपने खुद के पुरानी चीज़ों की जानकारी नहीं है। जो ट्रेडिशंस हमारे बुजुर्गों के पास थे हमें उससे कम आ गए, हमारे बच्चों में और कम गए। वी आर नॉट पासिंग दोज थिंग्स टू आवर चिल्ड्रन एंड वी थिंक कि ये ऑर्थोडॉक्स पुरानी चीज़ है, जबकि उन चीज़ों में ही सारी चीज़ छुपी हुई है। आज भी कोई चीज़ हल देखना होता है तो ग्रंथों को देखा जाता है। रिसर्चर जो बैठे हुए R&D कर रहे हैं वो भी हमारे पुराने ग्रंथ देखकर उसको कर रहे हैं। तो वी शुड नॉट फील अशेम्ड बट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नॉलेज जो हमारे एंसेस्टर्स के पास थी और हम उसको आगे परकोलेट नहीं कर पाए, तो वी शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। नाउ व्हाट आई फील इज एज आपका यहाँ BBRI का बड़ा अच्छा बॉटनी का जो यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसमें ट्राई टू मेक सम SHGs आप बनाएं और SHGs बनाकर उनको जो आदिवासी बेल्ट में जाकर रिसर्चर्स वहाँ जाएं और उनको ये सारी चीज़ बताकर उसको उसका एक कलेक्शन सेंटर जिससे फार्मर्स ग्रुप जो अपन बोलते हैं, जैसे दूध में भी होता है जो फार्मर्स मिलके अपना एक इकट्ठा करते हैं और उसकी एक अपनी सेलिंग करते हैं और उससे उनकी और उससे जीविका भी हमें मिलती है और प्लस हमें जो असली रॉ मटेरियल है। आज शहद जितना बिकता है उतना शहद होता नहीं है। आज जितना लोग कहते हैं कि गाय का हम घी दे रहे हैं उतना घी गाय का निकलता नहीं है।
आई डोंट थिंक जितना डाबर च्यवनप्राश बनाता है वो वही च्यवनप्राश है जितना कि बिकता है. मतलब आई स्टिल हैव अ एप्रीहेंशन ऑन मेनी थिंग्स, बट द थिंग्स आर कि हमको अपनी प्रकृति के साथ जुड़ना है और उससे जुड़े रहना है. और आज का विषय और आज की जो सेमिनार और वर्कशॉप हमें ये प्रेरणा देती है कि हम इसकी नॉलेज होते हुए भी आगे उसका प्रचार प्रसार करें. और बहुत अच्छा इनिशिएटिव कनिका जी और यहाँ की जो हेड हैं डॉक्टर अनीता जैन उन्होंने लिया है. आई थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस तरह की वर्कशॉप्स और नेशनल सेमिनार्स आपके यहाँ कंडक्ट होते रहें. मैं अभी पिछले 3 महीने में लगातार आई थिंक ये दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बड़ी तेज़ी से बड़ी गतिविधियाँ और बहुत सारे एक्टिविटीज़ और अच्छा जो है प्रगति और अच्छा कार्य आपके VVRI में हो रहा है. तो मैं इसी आशा के साथ कि इस तरह के और सेमिनार्स भी आप करेंगे और कुछ सोशल ग्रुप्स सोशल मीडिया के थ्रू कुछ SHGs के थ्रू इसको प्रोपोगेट और अवेयरनेस को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे. धन्यवाद.